یہ حل نہیں تھا کہ کوئی مذاکراتی ٹیم تشکیل دے دی جاتی انہی مظاہرین میں سے اور اس کو لے جا کر وزیر اعظم سے ملاقات کروا دی جاتی؟ اگر کوئی امر مانے ہے، کوئی پیچھے ریزنز ہیں اس کے، اور وزیر اعظم یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ میں بلیک میل نہیں ہونا چاہتا اس معاملے میں. دیکھیں یہ بہت ہی کروول ورلڈ پولیٹکس ہوتی ہے، اس میں آپٹکس ہوتے ہیں. عمران خان صاحب خود 2013 میں انہی ہزارہ مظاہرین کی جب میتیں پڑی ہوئی تھیں چل کر گئے تھے اور ادھر جا کے انہوں نے للکارا تھا کہ آصف زرداری تم کیوں نہیں آ رہے. بالکل صحیح. حالانکہ اس وقت ان کے راجہ پرویز اشرف صاحب پرائم منسٹر تھے اور وہ انہوں نے 3 دن ڈیلے کیا تھا اور ان 3 دن میں پیپلز پارٹی ملیا میٹ ہو گئی تھی. آگے 3 مہینے بعد الیکشن ہوئے. ان کی یہ کور کانسٹیچوئنسی تھی جو شیعہ سیٹ کے لوگ ہیں اور انہوں نے ان سے ریوالٹ کیا اور وہ الیکشن ہار گئے تھے. 2018 کے الیکشن میں یہ جو موسٹلی شیعہ کمیونٹیز تھی اور ان کے جو پولیٹیکل جو ہے ریپریزنٹیٹیوز وہ عمران خان کی پارٹی کے ساتھ کھڑے تھے. ابھی بھی گلگت بلتستان میں مجلس وحدت المسلمین نے انہی کی پارٹی کے ساتھ الحاق کیا ہوا تھا. خیر وہ تو سیاسی ریزنز ہیں. ابھی باسط صاحب بات کر رہے تھے کہ ایک وجہ ہے جو مجھے بھی نہیں پتا. ہم گیس واک کر لیتے ہیں کہ عمران خان صاحب اس وجہ سے نہیں جا رہے کہ وہ پبلک سے بالکل ڈسکنیکٹڈ ہو چکے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس وقت کیا ایموشن چل رہے ہیں اور وہ ایک اپنی ایگو پہ بتا دیا نا وہ بلیک میل نہیں ہونا چاہتے. اس طرح تو پھر ہر بندہ کبھی بھی کوئی واقعہ ہوگا لوگ سڑکوں پر آ جائیں گے، وزیر اعظم کو جانا پڑے گا. دیکھیں جانا پڑے گا، ایگزامپل سیٹ ہو جائے گا. جب بھی ہوگا جانا پڑے گا. نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم نے کیا وہ بلیک میل ہو کے گئی تھی؟ ٹھیک ہے، ایک مینارٹی کمیونٹی ادھر ہے اور وہ سارے کے زیادہ وہ امیگرینٹس ہیں اور وہ ادھر جا کے شہری بنے ہیں، لیکن جب ان کے ماسک پہ اٹیک ہوا انہوں نے ایک لمحہ نہیں ضائع کیا. وہ آپ کی پبلک نہیں ہے. اگر وہ آپ کو بلا رہے ہیں تو اس میں کیا بلیک میلنگ ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ان کے سارے مطالبات تسلیم کر لیے گئے ہیں. ان کا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ وزیر اعظم ہے. بالکل ٹھیک ہے. باقی مطالبات تو ایڈمنسٹریٹو اور وہ ہے اور وہ ان کا ہر سال 2 سال کے بعد ایک مساکر ہو جاتا ہے ماس لیول پہ اور وہ ان کے پاس اب طریقہ یہی بچا ہے. وہ تو 2000 اگر کوئی ہسٹوریکل ریزن سر اس کے سارٹ آؤٹ کیے جائیں، کہا جاتا ہے کہ یہ گروہی ایک لڑائی ہے آپس میں اور اس کو اب سیکٹیرین رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے جو کریٹ کرنے کے لیے. دیکھیں ایسی بات نہیں ہے. اسلامک اسٹیٹ داعش نے ابھی اس کی ریسپانسبلٹی لی ہے. پیچھے بھی جب بھی اٹیک ہوتے تھے ٹی ٹی پی یا داعش والے جو ہے نا، داعش تو اب آئیے پہلے ٹی ٹی پی جو ہے نا وہ اس کی ریسپانسبلٹی لیتی تھی. یہ تو بہت مظلوم کمیونٹی ہے. ان کو پہلے مارتے تھے پھر ان کے جنازے پہ بھی جا کے وہ بم چلا دیتے تھے. تو اس میں اب اس طرح کی جو یہ کانسپیریسیز اور اس طرح کی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں یہ اور زخم ان کے زخموں پہ نمک والی بات ہے. تو اس وقت ان کو اپنے الفاظ کے جو ہے وہ محتاط طریقے سے وہ کرنے چاہیے. پھر ساتھ وہ لیک کرا دیا کہ جی وہ ارطغرل کی ٹیم ٹرکش کے وہ آئے ہوئے تھے ڈرامہ والے انڈسٹری کے لوگ، ان سے ملے. تو یہ اس طرح ان کی جو میڈیا کی ٹیم ہے یہ تو خود ان کو 3 سال ابھی 6 مہینے کے اندر ان کی حکومت ختم کرنے پہ تول گئی. بالکل ٹھیک. ایسے سب جو ایک ڈیڈ لاک کریٹ ہو گیا ہے، اب آپ اس کا سولوشن کیا دیکھ رہے ہیں؟ وزیر اعظم جائیں گے یا وہ لوگ اپنے مطالبے سے پیچھے ہٹیں گے؟ دیکھیں ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ جی انڈیا کی سازش ہے اور وہ تقسیم کر رہا ہے. باقی انڈیا کی سازش ہے یا بیرونی سازش ہے. اسلامک ملیٹنٹ جو ہے ان کو لوکل وہ ملتے ہیں ادھر جو ہے اپنے فیسیلیٹیٹر، لیکن فنڈنگ تو باہر سے ہوتی ہے نا. ٹھیک. لیکن آپ پچھلی ایگزامپلز دیکھیں کہ جب بمبئی اٹیک ہوا یا اے پی ایس اٹیک ہوا تو اس وقت کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی، حکومت تھی، انہوں نے ساری اپوزیشن کو ملایا. زرداری صاحب کی حکومت تھی، انہوں نے فوراً اے پی سی بلائی. اے پی سی جب اس پہ پشاور اس پہ سکول پہ حملہ ہوا فوراً اے پی سی بلائی، نیپ ہوا. ٹھیک ہے. اور قوم متحد ہو گئی. تو اس طرح کے واقعات جب ہوتے ہیں ہماری قوم کوئی ایسی بے حیثیت وہ نہیں ہے کہ خالی بیانیے پہ چل پڑتی ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک بہت اچھا ایک موقع تھا کہ اس وقت عمران خان پوری وہ جو ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کو ساتھ لے کے اور فوجی لیڈرشپ کو لے کے چلے جاتے، ادھر ساتھ بیٹھ جاتے اور ادھر جا کے ایک کوئی گیم چینجر ٹائپ پلان لے آتے کہ ان کا مسئلہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جاتا یا کم از کم ان کی داد رسی ہو جاتی. لیکن یہاں پہ تو وہ
बिल्कुल ही अजीब वो हो गया। अब वो जो पॉलिटिकल लीडरशिप है दूसरी मरियम और बिलावल, वो उसी दिन तो नहीं चले गए, वो भी चौथे दिन गए हैं, तो उससे पहले हुकूमत के पास मौका था, चले जाते और वो हल हो सकता। अभी साइकिल चल रहा है, यानी हर कुछ सालों बाद ये इस किस्म की वो मिसाइकिल्स होती हैं। अब इसको कैसे रोका जा सकता है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूसली एक सिलसिला चल रहा है उनके साथ, हज़ारा बरादरी के साथ। देखिए इसके लिए तो कंटिन्यूसली फिर हमें अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे। एक हमारी प्रॉक्सी वार्स चल रही है, हमारे हॉस्टाइल नेशंस, हमारी वो नेबर्स हैं। सर वहाँ पर बहुत सी लेयर्स में सिक्योरिटी भी है, चेक पोस्टें हैं पाकिस्तान में, उसके बावजूद ये वाक़या हो जाना बहुत बड़ी तशवीश की बात नहीं। ये है तो सिक्योरिटी लैब्स, ठीक है। और दूसरा वो जो कम्युनिटी है जो अंडर अटैक है फॉर 2 decades, ठीक है, और उनके लोगों को मच्छ में जाके अब वो अपनी जान हथेली पे रख के जब हज़ारा डिस्प्लेस कर दिया जाए वहां से, नहीं फिर डिस्प्लेस किस किस को आप करेंगे? इधर वो सेक्टेरियन वार अगर शुरू हो जाती है तो आप पूरा एक क्या जोन बना देंगे कि ये इस सेक्ट के लिए, ये इस एथनिसिटी के लिए, ये तो नहीं है ना। हमें तो मिलिटेंट्स को रूट आउट करना है ना, उनको निकालना है, ना कि हम अपनी कम्युनिटीज को इधर उधर डिस्प्लेस करते फिरें। ये तो कोई नहीं है, ये सोल्यूशन नहीं है। सर बात ये है कि जब 1 पॉइंट एजेंडे पे वो अड़ जाएंगे, सीधी बात है, तो अब हम एक हाइब्रिड वॉर का शिकार हैं। अब ये भी हो सकता है कि वही लोग जो इसके पीछे मुलविस हों वही एजेंडा भी सेट कर रहे हों। ये इनके दिमाग में किसने डाला कि पीएम साहब आए वहां पे? देखे बाकी सारे वज़ीर दाखिला जिनकी ड्यूटी थी वो वहां पहुंच गए, वज़ीर आला बलूचिस्तान वहां पे पहुंच गए। अब इस एक एजेंडे को दिमाग में डाल देना और मॉब है फिर उसको फॉलो कर रहा है, तो अब इसको भी तो किसी हद तक काउंटर करना चाहिए। हाँ, इसको हम इस तरह ले सकते हैं कि वजीर आजम के कान में किसने डाला कि ना जाए। बिल्कुल ठीक। वो तो मजलूम है ना, उनकी तो लाशें, वो तो मैं तो अपनी लाशें रख के बैठे हुए अजीजों की, और वो 2 दहाइयों से उनके साथ ये सिलसिला चल रहा है। तो इस इशू पे हमें हमेशा मजलूमों के साथ खड़ा होना चाहिए, ना कि उनको एक ताकतवर जो तबका है उसको हम सर अगर इसको मुल्क के खिलाफ साजिश अगर करार दे दिया गया है तो वैसे उनके पास कुछ रिपोर्ट्स होंगी, और फिर पब्लिक के सेंटिमेंट से खेलना, पहले उन सेंटिमेंट्स को फ्यूल करना और फिर उनसे खेलना, ये एक पूरी वॉर हो रही है सर। नहीं, ये हम मेरे ख्याल में अपने अल्फाज का चुनाव इधर सही नहीं कर रहे। ठीक, ये जैसे आज इमरान खान साहब ने कहा कि जी वजीर आजम को ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता, ये ना ब्लैकमेलिंग है और ना ही ये कोई ऐसा एजेंडा है। इसमें वो इस वक्त एक मजलूम कम्युनिटी बैठी हुई है, वो अपने वजीर आजम की तरफ देख रही है। उन्होंने कोई दूसरे मुल्क को नहीं बुलाया, अपनी फौज को नहीं बुलाया, वो अपने एक जो इधर का चीफ एग्जीक्यूटिव है उसकी तरफ देख रहे हैं। सूबाई हुकूमत की तरफ से वो मायूस है कि उन्होंने उनकी हिफाजत के लिए कोई इकदाम नहीं किए। वो अपने मुल्क के वजीर मरकज से चले गए, जुल्फी बुखारी जो वजीर आजम के काफी क्लोज समझे जाते हैं वो वहां पे चले गए। वजीर अब क्या वजीर साहब वहां पे गए, वजीर आजम साहब को जाना चाहिए, वो उनकी बात सुननी चाहिए और उनके साथ जो जो वो वादे करें उनके पे पूरी तरह अमल दरामद करना चाहिए। इससे अभी हम मेरे ख्याल में बहुत सेंसिटिव इशू है, पूरा मुल्क इस वक्त जैम हो चुका है। जो वो कहते थे ना, वो ट्यूनिस में एक वेंडर था, उसने अपने आप को आग लगाई थी और वो अरब स्प्रिंग उभरा, पूरे उसने कई हुकूमतें मिलियमेट कर दी, ठीक है। और इस वक्त अगर वो कहते हैं ना कि मुल्क में वो तहरीर स्क्वायर बन गया है, पूरा मुल्क जैम होता जा रहा है, हर मुल्क ये मोटरवे जैम हो चुकी है, पूरा आपका लाहौर से आप एग्जिट एंट्रेंस सारा वो जैम, बड़े शहर छोटे शहरों में धरना होता और सारे पुर अमन है। ये आप उनको प्लस पॉइंट दें कि वो आराम से बैठे हुए हैं, वहां पे कोई इन्फ्लेमेटरी किस्म की तकरीरें नहीं हो रही। वो सारे वजीर आजम से मुतालबा कर रहे हैं कि वो जाए, उस कम्युनिटी की बात सुने, उनके सर पे शफकत का हाथ रखें और उनकी दाद रसी करें। इस पे दूसरी और कोई ना ये ब्लैकमेलिंग है, ना ये उनका कोई बेजा मुतालबा है। अच्छा, दूसरा ये कि जो वहाँ तकरीरें की जा रही हैं उनसे यही तासुर मिल रहा है कि उनको भी ये किसी हद तक पता है कि ये एक साजिश है मुल्क के खिलाफ, और उसके बाद इसलिए वो किसी किस्म का एग्रेसिव एक्शन नहीं ले रहे, सिर्फ मुतालबा इतना है कि वज़ीर आज़म आ जाए। इस चीज को तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि उनकी जो तकरीरें हैं, जैसे वो कह रहे थे सर कि
वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे उधर लग रहे हैं या हुसैन की बात कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कोई और बात ही नहीं की, वरना कोई जलाओ घिराव नहीं हुआ, पुरसकून। और इतनी सर्दी में वो बैठे हुए पुरसकून तो हम नहीं कह सकते, ये बड़ी दिल दहला देने वाली बात है। वो हमारे वजीर आजम साहब को पता नहीं कैसे नींद आ जाती है। जुबैर साहब ने इस तरह कहा कि अगर ये कम्युनिटी जो वेल अवेयर्ड भी है और प्रो पाकिस्तान सेंटिमेंट्स बहुत वाजे है, इस मौके पर भी दुख की इस घड़ी में भी बहुत वाजे है, अगर हम उनको भी अपने खिलाफ कर लें, अगर उनको ना मौके पे जाके वहाँ उनकी दादरसी की जाए, तो ये बहुत बड़े एक तशवीशनाक की बात की जा सकती है। ये अब देखें, वो कम्युनिटी तो शायद नहीं हो रही, लेकिन जो पब्लिक ओपिनियन है वो कम से कम हुकूमत के खिलाफ जा रही है, ठीक है। और ये सियासी हुकूमत है, और सियासी हुकूमतें इतना अफोर्ड नहीं करती। यहाँ पे कोई ईगो या कोई किस्म की जैसे कोई मिस्ट्री नहीं होती। बासित साहब कह रहे हैं कि जी वजह है और वो वजह पता नहीं चल रही। यहाँ पे कोई वजह नहीं होनी चाहिए, चले जाएं उधर जाके अपनी गलती का इतराफ करें कि मुझे देर हो गई आने में, मुझे आना चाहिए था, और आपके जो मुतालबात हैं उनसे बात करें। और वो राजा परवेज अफीफ साहब गए थे, वो मीडिया के सामने मिले थे, बहुत ही शुस्ता शगुफ्ता और पढ़े लिखे और अमन लोग हैं। सर, बात ये कि प्रॉक्सी वॉर का हम शिकार हैं, और यही लोग जो सोशल मीडिया पर बैठे हुए हैं आड़ाकार बनते हैं, बाहर बहुत सारे मुल्कों का और पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों का हिस्सा बनते हैं, फिर मजहबी मुनाफरत को हवा देते हैं। इसके लिए एक बहुत आसान तरीका है PTA का, फिल्टर्स लगाए जाते हैं कि आप इस किस्म का मवाद जो है अपलोड नहीं कर सकते, तशहीर नहीं कर सकते, उसके बावजूद ये हो जाना, क्या रीजन है आपके? देखिए, ये तो फिर हमें जब कोई ऑटोमेटेड किस्म के फिल्टर आ जाएंगे कि वो खुद ही इनको डिटेक्ट करें और उनको रिमूव कर दें। लेकिन इस किस्म के जो फैसले आ रहे हैं ना, ये भी अलमिया है हमारे मुल्क का। आप और कोई इस्लामी मुल्क ले लें, सऊदी अरेबिया ले लें, ईरान ले लें, सिवाय इंडोनेशिया के, वहाँ पे भी ये ब्लास्फेमी पे या इस तरह के जो होते हैं ना गुस्ताखाना मवाद पे सजाएं हैं। बाकी ममालिक में इस तरह की बातें नहीं होती। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हम सेक्टेरियनिज्म का शिकार हो चुके हैं, और इधर इस्लामाइजेशन पे बहुत काम हुआ, जिसकी वजह से अब यूट्यूबर्स जो है वो बजाय इसके कि वो सोशल इश्यूज पे, मॉरल इश्यूज पे डिबेट कर रहे हो, वो एक दूसरे के जो सेक्ट्स हैं उनको नीचा दिखाने के ये लोग जो अब सजाए मौत के हकदार करार पाए हैं, ये लोग क्यों उन फॉल्ट लाइन के साथ खेलते हैं जिससे सोसाइटी का जो फैब्रिक है टूट सकता है? नहीं, ये वही मैं बात करता हूँ कि ये एक इस वक्त पूरे मुल्क में जो इस्लामाइजेशन और सेक्टेरियनिज्म की वेव चली हुई है, ये उसी का हिस्सा है। और इससे ये नहीं है कि वो कोई उससे चीजें रुक जाएंगी, उससे मजीद और उधर से अटैक होंगे, उधर से अटैक होंगे। हम जितने कवानीन अगर इंडिया का जासूस पकड़ा मारा गया, अगर हम उसको सजाए मौत देते हैं तो मामला तो रुक जाएंगे। अब यहाँ भी यही है कि अगर सजा का निजाम होगा